صدارتی انتخابات کی پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے۔ امریکی صدارت پر براجمان ہونے اور وائٹ ہاؤس کا مہمان بننے کے لیے صدارتی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ واشنگٹن، کیلیفورنیا اور نیو یارک سے جو بائیڈن کامیاب۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے 223 اور ریپبلکن امیدوار امریکی صدر ٹرمپ نے اب تک 206 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹس نے ریاست ایریزونا میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جہاں سے 2016 کے انتخابات میں ٹرمپ کامیاب ہوئے تھے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ بھر میں ہماری پوزیشن مستحکم نظر آ رہی ہے۔ امریکی نیٹ ورکس کے مطابق انڈیانا، نیبراسکا، اوکلاہوما، کنٹکی میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے ہیں اور انہیں فلوریڈا میں بھی برتری حاصل ہے۔ امریکی نیٹ ورکس کا کہنا ہے کہ ریاست الاباما میں سینٹ کی نشست ریپبلکن کے پاس برقرار رہی، جبکہ ڈیموکریٹ نے ایوان نمائندگان میں اکثریت برقرار رکھی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 14,646 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 18 افراد کرونا وائرس کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1,313 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,37,573 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 14,646 ہو گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,16,060 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 18 موات رپورٹ ہوئی، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,867 ہو گئی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کووڈ-19 کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اس موقع پر NCOC حکام نے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر قومی رابطہ کمیٹی نے NCOC کی جانب سے اعلان کردہ لازمی ماسک، شادی ہالز اور ریسٹورینٹس کے محدود اوقات اور اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں خودکشی کرنے والی ڈاکٹر ماہا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر لی گئی۔ DIG ساؤتھ جاوید اکبر ریاض کے مطابق ڈاکٹر ماہا شاہ کی پوسٹ مارٹم میڈیکل رپورٹ نے تیار کر کے پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گولی کنپٹی کے دائیں جانب سے لگی اور بائیں جانب سے باہر نکلی، جس سے ظاہر ہوتا ہے ڈاکٹر ماہا نے خودکشی کی ہے۔ اس سے قبل CT اسکین اور ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے بعد خدشات نے جنم لیا تھا کہ گولی بائیں جانب سے لگ کر دائیں جانب سے نکلی، جس سے واقعہ قتل کی واردات معلوم ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب میں 50 کروڑ روپے کے ابتدائی فنڈ سے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کے اجرا کا اعلان کر دیا۔ عثمان بزدار نے پنجاب میں 50 کروڑ روپے کے ابتدائی فنڈ سے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کے اجرا کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کی بے حد جذباتی وابستگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس میں ہونے والی اس مذموم حرکت اور فرانسیسی صدر کے قابل مذمت بیان کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر سال ربیع الاول میں ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری سطح پر منایا جائے گا۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد حسن رضا خان کی ہدایت پر جوائنٹ ٹاسک ٹیم کا مقامی پولیس ریلیف فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن انچارج JDT ناظم مشتاق کی زیر نگرانی کیا گیا۔ سرچ آپریشن تھانہ نیو ملتان اور تھانہ سیکرماڑی کے علاقوں محمدی محلہ، پیر غیر روڈ، کیسر آباد، محلہ قادر آباد، 40 فٹی روڈ اور سمیج آباد کے گرد و نواح میں کیا گیا۔ ملتان سرچ آپریشن کے دوران منشیات فروشوں اور غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ زمبابوے نے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد میزبان پاکستان کو شکست دے دی۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے 3 میچوں کی سیریز کے آخری میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ سپر اوور میں پاکستانی ٹیم مہمان ٹیم کو صرف 3 رنز کا ہدف دے سکی، جسے زمبابوے نے بآسانی پورا کر دیا۔ مہمان ٹیم کی
فتح کے ساتھ 3-1 روزہ میچوں کی سیریز کا اختتام پاکستان کی 2-1 برتری سے حاصل ہوا۔ बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैनू कितने काम भेजे सौदा लैन भेजे फैसला तू आप कर तेरे महल्ले च पानी आउंदा बिल्कुल आउंदा महल्ला छड़ फैसला नहीं होना थाने चलिए अगला फैसला दस बकरी नहीं सुनती बकरी बेच दे उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है जिथे चौंधी है ना हाँ जी उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा मैं देखदा पानी किदां थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि केंजू का रिहायशी किसान सदरुद्दीन समेजा की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने पर मुतासरीन ने बाअसरों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। केंजू के रिहायशी किसान सदरुद्दीन समेजा साथियों समेत मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने 20 साल पहले ज़र ज़मीन खरीदी थी। अब कुछ बाअसर लोग समेजा करीम दाद समेजा, सदीक अकबर, गुल मोहम्मद शबीर समेजा ने हमारी ज़मीन को नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं और कपास की खड़ी हुई फसल को शनाई करके ले जा रहे हैं। रोज़ाना आकर हमें धमकियां देकर चले जाते हैं। मैं गरीब मिस्कीन हूं। मैं आला हुकाम से अपील करता हूं कि मुझे बासरों से निजात दिलवाई जाए। खबर शामिल करते चले सेवन शरीफ से, जहां पर मान सईदाबाद के करीब इंडस हाईवे पर 2 मोटरसाइकिलों के माबैन तसादम पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सेवन शरीफ इंडस हाईवे पर 2 मोटरसाइकिलों में जोरदार तसादम पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद सख्त जख्मी हुए। जख्मियों में तारिक सोलंगी और लियाकत शामिल हैं। जख्मियों को सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर इनको तिबी इमदाद दी जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि खैरपुर नाथन शाह अवामी पुरहियत तहरीक की जानिब से गांव में चारों में सिंध सजा प्रोग्राम का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक प्रोग्राम में अवामी पुरहियत तहरीक के रहनुमा एडवोकेट मीर खोसा, मज़हर चांडियो एडवोकेट रहीम बख्श, बगियो एडवोकेट आज़म खास खली, मंजूर सोडर और दीगर लोगों ने शिरकत की, जिसमें सिंध सज्जाग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और गाँव के मुख्तलिफ नौजवान किसान तलबा ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम में पुरहियत तहरीक के रहनुमा एडवोकेट मीर खोसा, मज़हर चांडियो एडवोकेट आज़म खास खली ने
तहरीर से खिताब करते हुए कहा कि अब हम सिंध के लोगों को सिंध के जज़ायर, दरिया, समंदर और ज़मीनें बचाने के लिए एक साथ मिलकर जदोजहद करना होगी, नहीं तो हमारी सिंध हमारे लिए फ़लस्तीन बन जाएगी। वहाँ मौजूद शुरका ने मज़ीद कहा कि हमें सिंध को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाना होगा, तालीम देनी होगी और सरदारी जागीरदारी निज़ाम से आज़ादी हासिल करनी होगी। मुल्तान में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जनूबी पंजाब कैप्टन जफर इकबाल ने थाना BZ का दौरा किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जनूबी पंजाब कैप्टन जफर इकबाल अमान ने गुज़श्ता शब अचानक थाना BZ का दौरा किया। थाने में रिकॉर्ड मुरतब न होना, हवालात में बगैर मुकदमा कैदी को बंद करने और सफाई की अबतर सूरत हाल पर SHO थाना BZ बशीर अहमद हराज को लाए नाज़र कर दिया, जबकि SP गुलगश्त और DSP को मौके पर तलब करके मामले की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। तफसील के मुताबिक एडिशनल IG साउथ पंजाब कैप्टन जफर इकबाल अवान ने गुज़श्ता रोज़ थाना BZ मुल्तान का अचानक दौरा किया। उन्होंने थाने का रिकॉर्ड चेक किया। थाने का रिकॉर्ड दुरुस्त तरीके से मुरतब न होने पर मुतलका स्टाफ पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल ने हवालात का मुआयना भी किया, जहां उन्होंने कैदियों से मुलाकात की। इस मौके पर हवालात में मुल्ज़म के भाई को गैर कानूनी तौर पर हवालात रखने पर SP और DSP गुलगश्त मौके पर तलब कर लिया और मुल्ज़म की जगह कैद किए जाने वाले उसके सके भाई को रिहा करने के अहकाम जारी किए। बाद में एडिशनल IG जनूबी पंजाब थाने का विजिट किया और गंदगी के ढेर होने पर मुलाजमीन की सरदोशी की। AIG जनूबी पंजाब कैप्टन जफर इकबाल ने इस मौके पर कहा कि थाना कल्चर में तब्दीली का विजन लेकर आया हूँ, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फराइज में गफलत बरतने वाले पुलिस मुलाजमीन किसी रियायत के मुस्तहिक न है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के उनके लवाहिकीन को गिरफ्तार करना निहायत काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि थानों के रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर मुरतब किए जाए, बसूरत दीगर रिकॉर्ड मुकम्मल न रखने वाले अफसरान फील्ड में नौकरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि थाने में सफाई सुथराई का मुकम्मल ख्याल रखा जाए, थानों में आने वाले साइलिन के साथ बेहतर रवैया रखा जाए, उनके बैठने का मुनासिब इंतजामात किए जाए। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन जफर इकबाल ने कहा कि थाना BZ एडिशनल IG ने इस मौके पर फ्रंट डेस्क पर रजिस्ट्रेशन शिकायत पेशरफ्त की जायजा भी लिया, शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। कैप्टन जफर इकबाल ने कहा कि थानों को मिसाली बनाने के लिए जनूबी पंजाब के अचानक दौरा करूंगा। थाने खौफ के बजाय अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बनकर रहे। पुलिस इमेज को बेहतर किया जा सकता है। बाद एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन जफर इकबाल ने थानों के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और SP गुलगश्त को इंतजामात बेहतर करने की हिदायत की। बहुत शुक्रिया जाफर, तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद में जश्न सादिकीन अलैहिस्सलाम भरपूर अंदाज में मनाया गया, जिससे खुसूसी खिताब अलामा मुबारक अली मौसवी ने किया। इस मौका पर शिया सुन्नी मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। मज़ीद देखते हैं फैसलाबाद अली गौहर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानब से मकामी होटल में जश्न सादिकीन का इनकाद किया गया, जिसे खुसूसी खिताब अलामा मुबारक अली मौसवी ने किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी, सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी राना मोहम्मद अनाम मंज, अलामा जाकर हुसैन नकवी व दीगर ने भी खुसूसी शिरकत की। जश्न सादिकीन में शिया सुन्नी इत्तेहाद की वाज़ेह मिसाल देखने में मिली। जश्न सादिकीन से खिताब करते हुए अलामा मुबारक अली मौसवी का कहना था कि जश्न मनाने का मकसद मोहम्मद व आले मोहम्मद की पैरवी करना है, ताकि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकें। तेरा रूह अनवर वो है जिसने चांद में रोशनी ली है। पूरी बशरियत भी मिलकर तेरी सना करना चाहे तो उसके लिए नामुमकिन है। तेरे
तेरी सना का हक अदा नहीं हो सकता। दर्ज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, मैं अगर मुख्तसर कर लूं तो खुदा के बाद सिर्फ आपकी ही जात है या रसूल अल्लाह। मौजूदा दौर में जश्न मनाना नौजवान नस्ल को मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत से आगाह करना है। रेड न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था, पैगाम वहदत का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, रवादारी का है। यकीनन हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों का अगर मुताला करते हैं तो उसमें हमें यही चीज़ें नज़र आती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दफ़ा आपके एक सहाबी ने, आपके खिदमत गुज़ार ने कहा कि मौला मैं अब आपसे जाके तबलीग करना चाहता हूँ, अपने इलाके में जाना चाहता हूँ और तबलीग करना चाहता हूँ। आप काफ़ी अर्सा उसने आपकी खिदमत में गुजारा था। मौला ने कहा कि एक शर्त पर तुम्हें इजाज़त है कि तुम तबलीग करो। उसने कहा मौला हुक्म करें। मौला ने कहा कि ज़ुबान से तबलीग नहीं करनी, यानी किरदार पेश करना है। यकीनन हम जिनके मानने वाले हैं, अगर उस किरदार को हम पेश करें तो माशरे की बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं, माशरे में अमन सुकून आ सकता है। तो लिहाजा अपने रवैयों पे बहैसियत मुसलमान हमें गौर करना चाहिए और माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए सादिकीन का जो तर्ज़ ज़िंदगी है उस पर अमल पैरा होना चाहिए। मुसलमानों में इतना शऊर बेदार होना चाहिए कि हर आदमी को बढ़ चढ़ कर इस जश्न ईद मिलाद नबी को मनाना चाहिए और हर आदमी को, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है और इससे ज़्यादा खुशी हमें और कोई है ही नहीं है। जी बहुत मुबारक हो, बहुत ही मुक़द्दस महीना है ये तो। और ऐसे जो मिलाद मुस्तफ़ा है वो तो होने चाहिए। ये मौजज़ा-ए हजूर है साहिब, दरूद उन पे भेजूँ और ख़ुद संवर जाऊँ। इस तरह की महफ़िल का इनेकाद इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कह सकते हैं ये ऑक्सीजन है दिस टाइम, बहुत ज़रूरी है। जश्न सादकैन में आने वाले शुरका का कहना था उन्हें सीरत मोहम्मद। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गोहर, रेड न्यूज़, फैसलाबाद। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम ने मुकामी पुलिस एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन किया। मज़ीद जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मुकामी पुलिस एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजमा मुश्ताक की ज़ेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना न्यू मुल्तान और थाना सीतलमाड़ी के इलाकों मोहम्मदी मोहल्ला, पीरा गैब रोड, कैसराबाद मोहल्ला, कादराबाद, 40 फुटी रोड और समीजाबाद के गिरद नवा में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मनशियात फरोश और गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजम को मनशियात फरोश जबकि एक मुलजम गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया जाफर अपडेट करने का। इस्लामाबाद के शहर रवात में सियासी और समाजी शख्सियत सदर इंसाफ यूथ विंग तहसील रावलपिंडी अनवर उस्मानी ने रेड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। इनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशानुल हक और हम मौजूद हैं आज इस्लामाबाद के शहर रवात में और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत सदर इंसाफ यूथ विंग पटवार टाउन जनाब हाफिज़ अनवर उस्मानी साहब। आइए इनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और सर बताइएगा हमें कि आपका ये सफ़र कैसा रहा सदर बनने के बाद, आगे का लाए अमल भी बताइएगा और हमें बताइए बताएं कि आपका सफ़र जो है ये कैसा रहा यहाँ तक का। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं रेड न्यूज़ टीम आपका और ज़ीशान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हालात के मुताबिक करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हाल ही में जैसे फ़्रांस में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, तो मैं सबसे पहले उनकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करना चाहता हूँ और इस इस्लाम मुखालिफ
फोबिया को ये बताना चाहता हूँ कि हम मुसलमानों में गैरत इस्लाम ज़िंदा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखी करके हमें तकलीफ़ ना दी जाए, और वक्त के हुक्मरानों से और ख़ुसूसन जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस मसले को उठाया जाए और इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया जाए, ताकि फ्यूचर में मुस्तकबिल में दोबारा से वो ऐसी हरकत ना करें। और मैं अपने लीडर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने कल बाकायदा से जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको इस हवाले से ख़त लिखा, और इंशाअल्लाह हमें इस पे उम्मीद है कि इस पे वो एक अच्छे अंदाज़ में इस मसले को उठाएंगे और मुस्तकबिल में हम मुसलमानों को इस तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सर, बताइएगा आपका आगे का लाए अमल क्या है और किस तरह के नौजवानों को आप मुतहर्रिक कर रहे हैं और किस तरह के नौजवानों को जो है वो आप नुमाइंदगी दे रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी ज़ीशान, बिल्कुल पहले भी आपने यही सवाल मुझसे पूछा और मैंने अपना मज़म्मती बयान पहले कर दिया। तो हाल ही में तकरीबन 15 से 16 दिन हुए हैं कि मुझे इंसाफ यूथ विंग पुटहार टाउन की नुमाइंदगी मिली है। एज़ आ प्रेसिडेंट मेरा इंतखाब हुआ है, तो इस पे मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह इस मिशन के साथ पुटहार टाउन की जितनी भी यूनियन काउंसिल्स है उनमें बल्कि वार्ड लेवल की सतह तक तंजीम साजी करने हम जा रहे हैं, जिसका गुज़श्ता शब भी हमारी गवर्निंग बॉडी की दूसरी मीटिंग थी। तो मैंने अपने तमाम टीम मेंबरान से भी ये दरख्वास्त की कि अगले नेक्स्ट वीक से हम बाकायदा हर यूनियन काउंसिल्स के विज़िट पे भी जा रहे हैं, और 10 तारीख़ से हम ऑनलाइन एक फॉर्म जारी करेंगे जिस पे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रियाती वर्कर हैं उनको एक तो मेरिट की बुनियाद पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और हम ऐसे नौजवानों को लाएंगे कि जिनका ताल्लुक़ किसी दड़े के साथ या किसी भी ऐसे उसके साथ नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ़ इमरान खान के नज़रियाती वर्कर होंगे और जो मुस्तकबिल में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए निकलेंगे, और हर मोड़ पे हर मिशन में नौजवान वो सबसे आगे होंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक तरक्की के राह पर गामज़न करने में वो अपना अच्छा किरदार अदा करेंगे। सर बताइएगा, थोड़ा महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, वक्ती हालात में तो मैं अगर इस बात पे वजाहत करना चाहूँ तो 30% अगर हम महंगाई का एतराफ़ करें, लेकिन 70% अफवाह है जो हमारी आजकल मीडिया के लिहाज से भी है, बाकी जितने मामलात हैं अफवाहें ज़्यादा हैं, या हमारी जितनी भी मार्केट कमेटी है, प्राइस कंट्रोल कमेटी है, जैसे हमारे एसी साहब हो गए, डीसी साहब हो गए, तो इनसे मेरी मुद्दबाना एक तो दरख्वास्त भी है कि जो सरकारी नरखनामे हैं उन पे अच्छे तरीके से ये अमल पैरा होने में कामयाब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मार्केट में अशिया की कीमतें और हैं, और सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स देख लें और सरकारी नरखनामे में और चल रही हैं। जैसे आप देखें कि तकरीबन 3 दिन पहले मैं सीएम बुज़दार साहब के पेज पे देख रहा था कि उन्होंने 20 किलो आटे तैले का जो रेट है वो 860 रुपये निकाला सरकारी तौर पे, लेकिन हमारी मार्केट में 1100 रुपये, 1050 रुपये, 1000 रुपये, 950। तो ये अवाम के साथ जुल्म है, और इसको किसने कंट्रोल करना है? हमारे जितने भी एसी डीसी या इनके नीचे जो मेंबर मार्केट कमेटी होगी, प्राइस कंट्रोल कमेटी होगी, इन्होंने देखना है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत कमी आएगी। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अफवाह ज़्यादा है, अब देख लें पिछले दिनों में डॉलर तकरीबन 170, 169, 171 पे चला गया था, और आजकल गुज़श्ता शब मैंने चेक किया डॉलर की कीमत 161 पे है, लेकिन कोई सोशल मीडिया पे कोई इधर उधर कहीं से मैंने ख़बर नहीं सुनी कि डॉलर गिरता जा रहा है। तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हमारी जो करेंसी है वो इंशाअल्लाह प्लस में जाएगी, और जो महंगाई का तूफ़ान है इंशाअल्लाह ये बहुत कम हो जाएगा। सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि तलाल चौधरी की तंजीम साजी के ऊपर आपकी क्या राय है?
جی ذیشان، میں اس میں تو زیادہ تر اپنا کوئی کمنٹ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ ہے کہ وہ خود ہی اس تنظیم سازی کا بہتر بتا سکتے ہیں، اور جہاں تک ہماری تنظیم سازی کا تعلق ہے تو ہم تنظیم سازی میرٹ پہ اور دن کو کرتے ہیں، اور طلال چودھری صاحب نے جو تنظیم سازی کی وہ رات کے وقت میں تھی. اور دوسرا جیسے کہ اس سے پہلے کہ جو ہمارے ڈکلیئر جو بھی انہیں کہہ لیں نواز شریف صاحب، جب ان کو نکالا گیا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا ہے، اور آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے طلال چودھری صاحب بھی بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے، تو لہٰذا وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہیں کیوں مارا گیا ہے. جی ناظرین، ہم موجود تھے جناب حافظ انور عثمانی صاحب کے پاس، اور یہ خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمارے بڑے مطمئن طریقے سے ہمارے سوالات کا جواب دیا انہوں نے. خبروں میں وقت ہوا ہے کہ کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ویلکم بیک ٹو ریڈ نیوز اسٹوڈیو. افسوسناک خبر شامل کرتے چلے فیصل آباد سے، جہاں پر اے جی آفس فیصل آباد صدر محمد بوٹا شاد کے والد محترم انتقال کر گئے. ان کے والد محترم کھڑیامالہ کے نواحی گاؤں چک نمبر 150 رے بے موانا سے تعلق رکھتے تھے. ہر دل عزیز سماجی شخصیت حاجی محمد رحیم بخش کی نماز جنازہ ان کے مقامی قبرستان میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت تمام مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی. نماز جنازہ میں مرحوم کی بخشش کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. سینکڑوں لوگوں نے مرحوم کی وفات پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا. اکاؤنٹ آفس کے صدر محمد بوٹا شاد اور دیگر لواحقین کو پرسا دیا گیا. رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں پر لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ناموس رسالت ریلی کا انعقاد کیا گیا.
ریلی کے شرکا نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ فرانسیسی حکومت کی ہٹ دھرمی اسلام دشمنی کی مثال ہے۔ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے ہمراہ دیگر یونینز اور تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ایمبرائڈری ایسوسی ایشن، پی ٹی آئی ویمن ونگ اور یوتھ ونگ، بٹا مزدور، ڈومیسٹک ورکرز یونینز بھی ریلی میں شریک ہوئے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے میاں محبوب حسین کا کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر جان بھی قربان ہے۔ امت مسلمہ میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ اسلام دشمن اور ملک دشمن ایجنڈے مسترد کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے چلے اوکاڑا سے، جہاں پر تھانہ حجرہ شاہ مقیم کی حدود کھر کلاں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین کراس فائرنگ ہوئی۔ ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اوکاڑا سے، جہاں پر تھانہ حجرہ شاہ مقیم کی حدود کھر کلاں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین کراس فائرنگ ہوئی۔ ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ کو اوکاڑا سے، جہاں پر تھانہ حجرہ شاہ مقیم کی حدود کھر کلاں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین کراس فائرنگ ہوئی۔ ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ نامعلوم ڈاکو شہری سے واردات کر کے فرار ہو رہے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ڈکیتی شدہ موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ ہلاک شدہ ڈاکو پاکستانی پل کے قریب بینک مینیجر رحمت علی کے قتل اور ڈکیتی کی واردات میں نکلا۔ ہلاک ڈاکو کو ڈکیتی معمہ قتل کے مقدمہ کے مدعی اور گواہان نے شناخت کر لیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت باور عرف باور سمیانہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ہلاک ڈاکو 40 سے زائد سنگین وعید کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے، جبکہ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو دیگر اضلاع کی پولیس کو بھی مطلوب تھا۔ ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے۔ ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے۔ یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا۔ آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں۔ حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز، لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا۔ دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم، صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ۔ مشاعرہ صدیوں کی روایات کا امین ہے۔ مشاعرہ الفاظ کی درست ادائیگی کا سب سے معتبر ذریعہ ہے۔ مشاعرہ نئے شاعروں کے لیے تربیت گاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ مشاعرہ عصر حاضر کے بنتے بگڑتے حالات کا ترجمان ہے۔ جی ہاں، ریڈ نیوز چینل پر جہان ادب کے نامور شاعروں کے سنگ
तुलुए सुखन मुशायरा जान कश्मीरी की मेज़बानी में हर जुमातुल मुबारक को सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखना न भूलिएगा। खबरों में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा आगे बढ़ाएंगे और आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। मोटियारी में सैयद सरदार अली शाह और साबका टाउन चेयरमैन सिकंदर अली शाह की अहलिया का इंतकाल हो। इनकी अहलिया की नमाज जनाजा सुबह 9 बजे सैयद शाह मीर कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक सूबाई वजीर जलाल शाह जामोट और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद इनके लिए दुआ खैर भी की गई। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने जिला इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू के जायजा इजलास की सदारत की। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िलाई सतह पर इंसदाद डेंगू के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा ले गया। इंडोर टीमें रहायशी घरों के अंदर, जबकि आउटडोर अवामी मकामात, बस अड्डे, ज़ेर तमीर इमारात, गोदाम, स्टोरेज हाउस, अहम जगहों के सर्वेलेंस करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन को कहा कि निजी व सरकारी तमाम स्कूलों में डेंगू से बचाव के लिए वेक्टर सर्वेलेंस की हिदायत की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर ने इंसदाद डेंगू बारे उठाए जाने वाले इक़दाम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इंसदाद डेंगू के लिए लोधरा की 73 यूनियन कौंसलों को मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया गया। हाई रिस्क 4 यूनियन कौंसलों को दरमियानी नोयत, जबकि 53 यूनियन कौंसलों को कम रिस्क की है। तहसील लोधरा की 7, तहसील दुनियापुर की 4, जबकि तहसील करोड़बग की 5 यूनियन कौंसल शामिल हैं। मजमूई तौर पर जिला भर में 279 इंडोर टीमें और 73 आउटडोर टीमें डेंगू के सर्वेलेंस के लिए तैनात हैं। तहसील लोधरा में डेंगू सर्वेलेंस के लिए 93 इंडोर, 28 आउटडोर, तहसील पक्का में 85 इंडोर, 23 आउटडोर, जबकि तहसील दुनियापुर में 101 इंडोर और 22 आउटडोर टीमें शामिल हैं। इन 7 डेंगू इक़दाम के हवाले से मजमूई तौर पर 2205 हार्स पार्स का अंदराज अमल में लाया गया है। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा प्रयार, ब्यूरो चीफ रेड न्यूज़ लोधरा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते हैं, चले फैसलाबाद से, जहां पर सरबराह जमीयत उलमाए इमामिया पाकिस्तान अल्लामा गुलाम अकबर साकी की तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं अली गौहर की रिपोर्ट। जमीयत उलमा इमामिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दफ़ाए नमूस रसालत के हवाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सरबराह जमीयत उलमा इमामिया पाकिस्तान अल्लामा गुलाम अकबर साकी, सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, रहनुमा पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहरुल हसन, अमीर जमीयत अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद रियाज कर्ल, सरबराह मरकज़ अहले हदीस अल्लामा मुफ्ती नसरुल्लाह अजीज, प्रिंसिपल जामियातुल मसूमीन मौलाना नाज़िम हुसैन, अल्लामा बशीर अंसारी, मौलाना गुलाम अली हैदरी, अल्लामा सैयद सफदर रजा काज़मी ने खसूसी शिरकत की। तमाम कातबे फिक्र के उलमा इकराम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्ताखे रसूल फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भरपूर मजम्मत की। शुरका का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर कोई भी आलमी अमन की जमानत नहीं दे सकता। रेड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था। और आपने बेहतरीन सवाल किया और बड़ा जामे है कि ये मसला किसी एक शख्स वाहिद या हुकूमत या एक मुमलकत का नहीं है, ये दीन इस्लाम का मसला है और रहबर इस्लाम की नमूस का मसला है। नमूस ख़त्म नबूवत सरकार रिसालत माब बजाय तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी उम्मत को बेदारी चाहिए। तमाम मकातब फ़िक़्ह फैसलाबाद के शरीक हुए हैं, ये एक अच्छा पैगाम है ना। इसी तरह अगर ये बढ़ता जाए, इस मुल्क में सब इकट्ठे हों, फिर तमाम ममालिक मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, तो इस्लाम बड़ी ताकत है। अलीगौर फ़ौज के अंदर इदारे हैं, फ़ौज के अंदर एक नज़्म ज़ब्त है, फ़ौज एक मुनज़्ज़म तरीन इदारा है। वो अंदर से अगर कोई गड़बड़ करे तो उसको अंदर ही पकड़ लेते हैं, उसका फ़ौजी ट्रायल होता है।
अगर फ़ौज में कोई ऐसा होगा, इंशाअल्लाह पाक फ़ौज ताकतवर फ़ौज है, मुखलस फ़ौज है, गयूर फ़ौज है, और पाकिस्तान के अवाम के दिल उनके साथ धड़कते हैं, जैसा कि आपने भी कहा। हम इंशाअल्लाह ताला साथ हैं, साथ रहेंगे हमेशा। देखिए, नमूसे रिसालत एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी ही ज़िम्मेदारी है। हम ये समझते हैं कि अगर हुकूमत ने कुछ आगे करना है तो ये हुकूमत ने क्या करना है। देखिए, आपने अपने जज्बात का इजहार करना है, आपने दुनिया को ये बताना है कि आप आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी अक़ीदत, मुवद्दत और मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि अगर कोई भी शख्स उनकी शान में कोई गुस्ताखाना बात करेगा, कोई लफ्ज़ उठाएगा, ज़ुबान हिलाएगा, तो हम उसकी मज़म्मत करेंगे। हमारे दिल दुखते हैं इस बात से। अगर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे कोई हर्फ आता है तो हमारी ज़िंदगियों का कोई मकसद नहीं है। अदरवाइज़ दुनिया के अमन की गारंटी नहीं दी जा सकती। पहला सवाल जो आपका है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल, हमारे क़यादत मोहतरम अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मामले ख़ुसूसी भी हैं, हमने नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम इस्लामी सरबराहान को ख़त लिखे हैं इस ताकि पूरी उम्मत मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंज से निपटा जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। शुरका का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ही दफाए पाकिस्तान की जामन है। कैमरामैन जीशान शानी के साथ अली गोहर, रेड न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में थाना मुमताज़ आबाद के इलाके में मुबैना डकैती की अनोखी वारदात। हेड नो बहार के करीब वाक़ अवामी ट्रैक्टर शोरूम से एक ही डाकू गन पॉइंट पर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन। जी जाफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान थाना मुमताज़ाबाद में मुबैना डकैती की अनोखी वारदात। हेड नो बहार के करीब वाक़ अवामी ट्रैक्टर शोरूम से एक ही डाकू गन पॉइंट पर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मुसल्लह डकैत की ट्रैक्टर शोरूम पर मुलाजिम को कमरे में बांधने की सीसीटीवी फुटेज रेड न्यूज़ ने मसूल कर ली है। मुबीना डकैती की वारदात अब्बास अराइन के ट्रैक्टर के शोरूम पर हुई। ट्रैक्टर शोरूम के मुलाजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि मुलाजिम की मिली भगत से ट्रैक्टर लूटने की कार्रवाई हुई। थाने के एसएचओ खालिद शबान का ये कहना है। बहुत शुक्रिया जाफर तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताते चले कि कॉनकॉर्ड, वापडा और हाइड्रो यूनियन की जानिब से फ्रांसीसी सदर गुस्ताख के खिलाफ वापडा ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। कॉनकॉर्ड फ्रांस में गुस्ताखी करने वाले अमल के खिलाफ वापडा और हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा ऑफिस से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में फ्रांसीसी सदर गुस्ताख के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर वापडा हाइड्रो यूनियन चेयरमैन असगर अली बजारानी, रशीद शाह बाबू, यूनुस मतीउल्लाह आवान और दीगर ने इन गुस्ताखाना खाके बनाने वाले अमल पर पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं फ्रांसीसी कारोबारी सिलसिले ख़त्म किए जाएँ। हमारे मुसलमान मुल्कों ने आज तक किसी भी मजहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं की है।